गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बीएड सेकेंड ईयर के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे। जेंडर बायस, लिंग विभेद के नाम दिया गया है इसको। जेंडर बायस हिंदी में लिंग विभेद या लिंग पूर्वाग्रह बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर बायस। मीनिंग ऑफ gender bias is the tendency to give preferential treatment to one gender or another. It is a form of unconscious bias which occurs when someone unconsciously attributes certain attitudes and stereotypes to a group of people. The most commonly seen gender bias in Indian society in between male and female. The root of gender biasness can be traced in India back from 17th to 18th century. The first bias that was faced by women in India was regarding the birth. The desire for boys who are seen as more useful than girls is a major driver of gender disparity. Girls will encounter gender bias at almost every stage in their lives. Femininity is restricted to girls. People tend to have a more indulgent outlook on girl acting like tomboys. Moreover, however, the opposite is not true for boys. There is a stigma attached to a boy being effeminate. देखिए, जेंडर बायस रिलेटेड है। जेंडर बायस को आप कह सकते हैं कि बालक और बालिकाओं के बीच जो लैंगिक असमानताओं से इसका मीनिंग लिया जाता है। बालक एवं बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में एवं पालन पोषण में कम, बालकों से निम्न स्तर पर यानी कि पिछड़ा या कम माना जाता है। उन्हीं लैंगिक विभेद है क्योंकि लड़कियों बालिकाओं को बालकों से नीचा माना जाता है, उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ, कुल का तालनहार वाला, कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता रहा है, जिसके कारण बालिकाएं अपेक्षाएं का पात्र बनती हैं। इस प्रकार प्राचीन मान्यताओं, सामाजिक कुप्रथाओं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव जेंडर बायस कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन दी है दुबे ने दी है। लैंगिक पूर्वाग्रह का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज के द्वारा रूढ़िबद्धता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती हैं एवं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है या पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती है। रीजंस क्या है जेंडर बायस के पीछे, ये देखते हैं। जेंडर बायस अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन: assumptions and tradition. The main reason of gender bias is caused by social assumption and tradition prevailing in society. Sons are preferred more than the family and considered kulka deepa. Number of assumptions are privileging in society, like a son is considered as salvation. Many times girls are killed before death. The preference for boys is disfavor towards daughter because of the in many places. Sons, especially in the business communities, are considered to be economic, political, ritual assets, wherever daughters are considered to be liabilities. Only the female social bias is the main cause of जेंडर डिस्पैरिटी इन आवर सोसाइटी। यहाँ पे क्या कहा गया है, धारणाएं और जो हमारी पुरानी परंपराएं समाज में प्रचलित है, चली आ रही हैं, उनका मुख्य कारण यही है कि परिवार में पुत्रों को अधिक पसंद किया जाता है और उन्हें कुल का दीपक माना जाता है। पुत्रियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, क्योंकि पुत्रों को विशेष रूप से व्यापारिक समुदाय में आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक संपत्ति माना जाता है, जबकि बेटियों को ऐसा नहीं माना जाता। सेकेंड आपका सोशल कस्टम, बिलीफ एंड practices. Women are found to social custom, belief and practices. The tradition, particularly joint family system, confines women's role mostly to the
domestic sphere, allocating them a subordinate status, authority, and power compared to men. Men are perceived as a major provider and protector of a family, while women are perceived as playing only a supportive role. Boys and girls are accordingly trained for different adult roles, status, and authority. In Indian culture, since very early periods, men have dominated women as a group and their status has been low in the family and society. So second reason रहा है सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताएं और प्रथाएं. महिलाएं सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओं से बधी हुई हैं. इंडिया में पितृ सत्तात्मकता देखी जाती है, जिसके देखते हैं फैमिलीज में जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट के एवज में. थर्ड यहाँ पे है सोशल बिहेवियर. सोशल बिहेवियर मीन सामाजिक व्यवहार कहते हैं. सोशल बिहेवियर सामाजिक व्यवहार. दो मेनी सोशल एक्टिविटीज एंड रिफॉर्म्स कैरिड देयर crusade against all social odds and to restore honor and respect to women, and attitudinal disparities still haunt our rural messages. Despite pronounced social development and technological advancement, women in our society still continues to be victims of exploitation, superstition, illiteration, and social atrophy. In the health and nutritional field, male members of family are supposed to take fresh and nutritious food in comparison to women, because either they are earning member or head of the family, or they are supposed to be more important than female member. This type of social attitude is conducted to create the problem of gender discrimination. So जेंडर सामाजिक व्यवहार जो है वो बहुत ही गलत है महिलाओं को लेकर परिवारों में. जैसे कि हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और सुधारकों ने महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बहाल करने के लिए सभी सामाजिक बाधाओं के खिलाफ कई प्रोग्राम भी किए हैं. और जैसे कि कहा जाता है स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में परिवार के पुरुष सदस्यों को महिलाओं की तुलना में ताजा और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, क्योंकि वे कमाऊ सदस्य होते हैं. इसलिए ऐसा कहा था, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं, इसलिए उनको ताजा भोजन लेना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे. ठीक है. नेक्स्ट इसमें है अवेयरनेस. लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वुमेन. Most of women are unaware of their basic rights and capabilities. They even do not have the understanding how the social, economic, and political forces affect them. They accept all type of discriminatory practice that persist in our family and society, largely due to their ignorance and unawareness as टू. सो कहीं ना कहीं महिलाओं की भी लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसकी वजह से वो अंडर एस्टिमेट की जाती हैं, डिस्क्रिमिनेट की जाती हैं अपनी फैमिलीज में. नेक्स्ट फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉवर्टी. इट इज द मेन रूट of gender bias. Still in India, 30% men and 70% of women are below poverty line and out of the total opportunities and autonomy. Lack to access economic resources, including credit, land ownership, and inherited. Lack of access to education and support service, and their minimal participation in the decision-making process. The situation of women on economic front is net better and men still enjoy a larger share. तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका योगदान फैमिली में कम है. पॉवर्टी जो महिलाएं हैं वो 70% तक हैं. पॉवर्टी है मतलब गरीबी की रेखा के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं. और इसका मुख्य कारण है कि भारत में महिलाओं की गरीबी सीधे तौर पर आर्थिक अवसरों और स्वायत्तता के अभाव, ऋण, भूमि की स्वामित्व और विरासत सहित आर्थिक संसाधनों की पहुंच की कमी है. शिक्षा और सहायता सेवाओं तक पहुंच की कमी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में न्यूनतम भागीदारी है महिलाओं की. इस वजह से कहीं ना कहीं जेंडर बायस हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट है इलिटरेसी, निरक्षरता. इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल in shaping gender bias. Uneducated people follow the prevailing myths and superstitions in the society, as they prefer boys more in comparison to girls. Educational backwardness of the girls has been the
रिजल्टेड कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो निरक्षरता कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे रखने में हाँ एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि जो भी लैंगिक विभेद को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही निरक्षरता अशिक्षित लोग में प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों का पालन करते हैं, क्योंकि वे लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक पसंद करते हैं। लड़कियों का शैक्षिक पिछड़ापन लैंगिक भेदभाव का कारण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्की इज द सोशल सिस्टम ऑफ प्रिविलेजिंग इन विच men आर the primary authority figures occupying roles of political leadership, moral authority, control of property, and authority over women and children. Most of India, with some expectations, has strong patriarchal and patrilineal custom where men hold authority over female family members, inherit family property and title. सो पेट्रियार्की है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने की मिलती है। पितृसत्तात्मकता है कि घर की जो प्रॉपर्टी है और जो पुराना धन दौलत है उनमें कहीं ना कहीं मेल को ज्यादा उनकी लीडरशिप मानी जाती है, उनको उनकी अथॉरिटी होती है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जेंडर बायस का रीजन बन रहा है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट गर्ल्स, लड़कियों के खिलाफ भेदभाव। While women express a strong preference for having at least one son, the evidence of discrimination against girls after they are born is mixed. जो लड़कियों के खिलाफ भेदभाव, जबकि महिलाएं एक मजबूत अभिव्यक्ति करती हैं, कम से कम एक बेटा हो, ऐसी वरीयता महिलाएं भी देती हैं घर पे। नेक्स्ट आपका लास्ट है डावरी यानी दहेज। The dowry system in India contributes to gender inequality by influencing the perception that girls are burden on families. Such beliefs limit the resource invested by parents in their girls and limit her bargaining power within the family. तो कहीं ना कहीं डावरी ये सिस्टम का रीजन बन रहा है। और भी कई रीजन देखे जाते हैं, जैसे कि प्राचीन मान्यताएं, पुरुष प्रधान समाज हो गया, इस वजह से जेंडर बायस है। संकीर्ण विचारधारा है हमारे कल्चर में, और सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी यहाँ पे है कहीं ना कहीं, और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है हमारे यहाँ। सरकार की उदासीनता है इस फील्ड में, वो ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। जागरूकता का अभाव है और सामाजिक कुप्रथाएं हैं, लाइक बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, सुरक्षा के कारण है, और गरीबी तो है ही। तो ये कुछ मेजर रीजन है इसके जेंडर बायस के। नाउ मेजर टू रिमूव जेंडर बायस, किस तरीके से जेंडर बायस को खत्म किया जाए, इसके कुछ उपाय हैं यहाँ पे। वेरियस मेजर कैन बी टेकन रिमूव जेंडर बायस। प्रिवेंशन of social assumption and tradition. There are preventing various assumptions in a society that in which gender bias like patriarchy, preference to son and more. First of all, this type of errors prevailing in a society should be removed. Creating awareness about gender bias has slowly spread over time, but it will be take a long time for this awareness to slip into the grassroots and translate into social changes. Next up, focus on girl education. Education is the main reason of gender bias because women are not more educated in the society, due to which they are unable to know their right and power. So education of women and girls should be at high. Next, improve educational system. Education is a tool which is helpful to develop overall operations of country. Our education system is too poor, which cause many irregularities in the system. Thus, it should focus on more. Next, provide equal opportunity. Women must be provide equal opportunity, and this is not a task to be left to the government or any organization or authority. Social changes begin at home. Parents have learned to adopt an innovative attitude towards bringing up their children. They should not panic if their son prefer to play with doll, or their daughter decide to do not want to marry till they are at 30. Parents need to give both sons and daughters the chance to live their life
free from the fetters of gender bias. Next है आपका promote gender equality in schools. Schools should widen access to education for girls. It has been proven that girls enrolled in school are less likely to be married and become pregnant early. If that were not reason. So यहाँ पे हमने देखे कुछ किस तरीके से हम जेंडर बायस को खत्म करें, कैसे अपने विचारों को बदले, कैसे महिलाओं को शिक्षित करें, और ये गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी या सोसाइटी का काम नहीं है, ये हमें अपनी फैमिली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जागरूकता का प्रचार करना चाहिए, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बालिका शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, स्प्रेडिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए, बैन ऑन सोशल सिस्टम, सुरक्षात्मक वातावरण, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर देना चाहिए गर्ल्स चाइल्ड को, समानता और समता इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात कही गई है, गलत सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं की समाप्ति करनी चाहिए, और प्रशासनिक प्रयास भी साथ साथ किए जाने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, ये जेंडर बायस का टॉपिक जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आपके सब्जेक्ट का है, ये आज मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। अगर कोई डाउट है इसके रिकॉर्डिंग तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।